अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुमताज़ हूँ। आज हम प्रेस क्लब के बाहर हमने नूर के ख़ानदान के साथ यकजहती और हर उस बच्ची औरत बच्चे और इंसान और पाकिस्तानी जिसके साथ ज़्यादती हुई, जिसके साथ जुल्म हुआ, उनसे यकजहती शो करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नूर के का मुकदमा कल से शुरू होने वाला है और ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि अगर हम आज नहीं निकलेंगे बाहर तो वो दिन दूर नहीं कि ये आग हमारे घरों तक पहुँच जाए, कि जुल्म की इंतहा देखें कि कैपिटल के अंदर कि इतना सफाकाना कत्ल हुआ। और अब वो दिन चले गए कि जब अमीर के लिए लॉ कुछ और था, गरीब के लिए लॉ कुछ और था। अब हमारे पीएम इमरान खान साहब ने भी हर फोरम पे जाकर ये कहा है कि स्पीडी जस्टिस दिया जाए। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अदलिया के कंधों के ऊपर कि इंसाफ और जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इन पर लगी हैं। शौकत भाई जिस मुल्क में एम्बेसडर रहे वो सबकी इधर है कि एक दारुल हुकूमत में अगर ये इतना जराइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो बाकी पाकिस्तान का क्या हाल होगा। एक पाकिस्तान के इमेज को भी बेहतर करने के लिए अदलिया को इंसाफ देना होगा और अभी उम्मीद करते हैं हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि पूरी कौम जाग रही है, पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम को इंसाफ चाहिए। सो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नूर को इंसाफ ज़रूर मिले। Run into my life, sunshine down my shoulder. The first time I touch your hand, it seems destiny calling, breaking to my heart. So hard to forget your face. Kiss you, hold you in my arms, never feel so good. Love you means you whole world I be. Kiss you, hold you in my arms, never feel so good. Love you means you मेरी सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज रेज योर कैंडल्स as we observe a few moments of silence in the name of justice and in the name of Noor. Thank you, everyone. I watched the video May I ask Noor's immediate family to please come on stage? Thank you. Okay. I would request everybody to please be careful with the candles.
جہاں پہ اتنے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، تو ایک ابھی میسیج آیا ہے جی مفتی رحمان صاحب کی طرف سے، جو پریزیڈنٹ علماء آگاہی بورڈ پاکستان کے بادشاہی مسجد کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ساری ریلیجس الحمدللہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک موومنٹ بنے گی اور نور مقدم کی شہادت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک پہ انصاف نافذ ہوگا. ہاں جی، کینڈلز آپ بے شک بجھا دیجیے فار یور اون سیفٹی اینڈ سیکورٹی پلیز. Could I please have the security team here? No more victim blaming. No more of a woman being reduced to a hashtag. ہماری جنگ اور ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک نہ صرف نور بلکہ اس قوم، اس ملک کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر عورت محفوظ ہو اور اسے انصاف ملے. آپ سب کے یہاں آنے کا بہت شکریہ. I'll just end with this. Be vigilant, be outspoken. And to quote something musician Adil Umar said right after Noor passed, don't wait for tragedy to remind yourself of human value. Shukriya. She's just got down this name. Very nice. السلام علیکم. السلام علیکم ویورز. آج ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اور نور مقدم کے انصاف کے لیے. کتنی ہی اس قوم کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں، یہ روزانہ کے ہونے والے یہ حادثات، ان کا سدباب کیا ہوگا، روک تھام کیسے ہوگی، اس کے لیے قانون سازی کیسے ہوگی. آج یہ نوجوان بچیاں، بچے، بوڑھے اور پیرالائز لوگ بھی یہاں پر آئے، اس احتجاج میں شامل ہوئے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک پیاری سی بیٹی موجود ہیں جن سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا کہتی ہیں آپ، انصاف کیا؟ آئی تھنک کہ ہمارا ملک ہمیں فیل کر رہا ہے ایز ویمن. عورتوں کو
جو اسٹیچر پہ رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ رہا. اینڈ یہ ہر دن کی کہانی ہے, ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی اسٹوری ہوتی ہے, چاہے وہ رپورٹ ہوئی یا نہ ہوئی, لیکن ہم بس ہر دن we're being failed by our government, we're being failed by the system, and I feel like it needs to stop. اور یہ جتنی زیادہ ہمیں یہاں پہ آ کے خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ایک ٹریجڈی ہے, ہمیں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے ان دا فرسٹ پلیس, یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے, ایسا موقع آنا ہی نہیں چاہیے جس پہ ہم یہاں تک پہنچیں. سو آئی تھنک کہ ہماری گورنمنٹ, دا کورٹ سسٹم, آئی ہوپ, اور میں امید کرتی ہوں کہ they do something about this trial, کیونکہ نور مقدم is just any of us, she can be any of us, she wasn't someone that مطلب وہ ہمیں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اگلے دن اللہ نہ کرے, it can be me, it can be my sisters, it can be my mother, it can be anyone. تو I don't want کہ ایسا کوئی ٹائم آئے جس ٹائم پہ ہم لوگ کریں یار it's too late now. تو جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے, I pray that this cycle ends once and for all. I pray that we never have to march again. I pray that کہ یہ چیزیں ختم ہو, and I pray that my justice system ہمیں صرف 2 دن کی ہیڈ لائنس میں ڈال کے خوش نہ ہو, ہمیں اس کے بارے میں کچھ لانگ ٹرم کرے, ہمیں گارنٹی دے, ہمیں سم سارٹ آف ریلیف دے, سو دیٹ وی کین سلیپ ایٹ نائٹ نوئنگ کہ وی آر سیف. اور جو یہ پریویلیج جو ایک چیز ہے نا جو اس سوسائٹی میں بھور کی پڑی ہے, ہمیں اس چیز کو, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, مدرس کی, فادرس کی, ساری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ ایک انسان کے بچے بن کے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. اور آپ نے یہ پوری جو ہوتی ہے ڈبیٹ کہ اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی بہن اپنی ماں کے علاوہ بھی, لائک یو شوڈ رسپیکٹ آل ویمن ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ دے ریلیٹڈ ٹو یو, اینڈ یو شوڈ بی, یہ دس از دا رسپانسبلٹی آف آر سوسائٹی, جنہوں نے اتنا وہ دیا ہوا ہے, اتنا فریڈم دیا ہوا ہے مردوں کو, کہ آپ شروع دن سے ان کے اندر جو پریویلیج ہے, and how that this is the result of that privilege, this is where it gets us, and it's high time that we mend this system, and ہم اپنے گھروں سے اسٹارٹ کریں یہ پوری تبدیلی. this will only start from our own homes and from our own upbringing, and we shouldn't be the only ones, women shouldn't be the only ones that stand up for things that men have done to us. یہ انہوں نے کیا ہے, یہ ان کی وجہ سے یہ دن آیا ہے جس میں we feel so incredibly unsafe in our own country. I feel like اگر یہ انہوں نے کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی وہ لیں, پوری کمپلیٹلی رسپانسبلٹی لیں, اس چیز کو اینڈ کریں. We shouldn't be the only ones that march for our rights when men have done this to us. They have brought us here. Whether or not you have assaulted someone in your life, I don't care. If you're a man and you're in this country, آپ کے پاس کافی privilege یہ country دیتی ہے, آپ اس privilege کو یوز کریں, اور آپ اس privilege کو یوز کر کے do something that helps women, that helps everybody live in a safer country. کیا کہیں گی بیٹا آپ اچھا آپ یہ میری بیٹیوں نے جی, میں خود بیٹیوں والا ہے, سب جانتے ہیں سعید علی بابا کو, پورے پاکستان میں دنیا میں لوگ جانتے ہیں. بیٹیاں جب ہوں تو منہ سے بات تو ویسے ہی نہیں نکلتی ہے, احترام اتنا ہوتا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس مجرم کو سزا کیا دینی چاہیے؟ دیکھیں کم سے کم اس مجرم کو جو ہے اس کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے, اور اس کو اتنا ٹارچر دینا چاہیے, ایک مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے اگر آپ یہ اس طرح سے کوئی حرکت کرتے ہوئے, پہلے تو یہ اتنی گھنونی حرکت ہے کہ کسی کو کرنی نہیں چاہیے, اللہ معاف کرے. اور اوپر سے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بات سمجھ آتی کہ مکافات عمل ہوتا ہے, کہ اگر جو تم نے اتنا برا کیا, تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا, تم نے کچھ پڑھا نہیں ہے, تمہیں اپنے دین کا کچھ نہیں پتا کہ اللہ نے تمہیں نہیں بخشنا آگے جا کے, اور تم اگر سمجھتے ہو کہ جسٹس سسٹم سے تم پھر بھی بھاگ جاؤ گے, لیکن تم آگے جا کے کیا کرو گے؟ تم نے ایک انسانیت کا قتل ہوتا ہے, ایک انسان کا قتل مطلب پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے, اور میں تو کہتی ہوں اس کو خود سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں تو کہتی ہوں اس کو ایسی موت آئے کہ اس کی اگلی 100 پشتیں یاد رکھیں کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ اپنی زندگی میں. اور ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا زیادہ انسیف فیل کرتے ہیں. میری 4 بہنیں, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی سیکیورٹی بھی اللہ تعالیٰ ان کو سیکیور رکھے, کیونکہ یہ جس طرح کا معاشرہ اور جس طرح کے مرد یہاں رہتے ہیں جن کو تمیز تک نہیں ہے کہ کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے اور کس طرح سے کیا کرنا ہے, اور پھر آ کے یہ جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو بہت ہیلپ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں. ویورز
मेरी देरीना साथी K2 TV से हमारा बड़ा रिलेशन, मैंने भी बहुत काम किया और मैम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मैम, आपने 2 मिनट दिए सईद अली बाबा को। ये क्या कहें आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप तो खुद मीडिया से, मैं सवाल क्या करूं आपसे, मेरा तो ज़हन ही माफ हो जाता है। सवाल आप इस सूरत हाल में सवाल नहीं बल्कि हम सब का जवाब है पूरी कौम का कि इस दरिंदे को और इस दरिंदे के साथ में जितने दरिंदे इन्वॉल्व हैं उन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे हैरत है कि थेरेपी वर्क्स वालों को कैसे बेल मिल गई, क्योंकि वो भी शामिल हैं इसमें। उनके तो पैनल के ऊपर ये दरिंदा जो था वो बच्चों को और जाके लोगों को काउंसलिंग करता था किस हिसाब से, और इनकी भी पूछगछ होनी चाहिए और इस केस को स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और इस दरिंदे को और साथ वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप होस्ट भी कर रही हैं, शो भी मैं आपका देखता हूँ, तो मीडिया से हैं हम दोनों। तो मैंने देखा अफ़गानिस्तान में वो बच्चों के साथ रैप करते थे, उन्होंने वो 2 दिन केस चलाया और दोनों को काबुल में लटका दिया। बस वैसे ही होना चाहिए। यहाँ 2 दिन लाशें, लेकिन फिर 2 दिन लाशों के लिए फिर वो 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे जी ह्यूमन राइट्स। भाई ह्यूमन राइट्स कहाँ से? जब एक बंदे ने एक औरत का कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसमें उसकी ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गई? खड़ा करें उसको। कल में मेरी बेटी, आपकी बेटी, हमारी बहनें, तो ये हम फिर उस वक्त हमें ह्यूमन राइट्स नहीं याद आएंगे? जी बिल्कुल नहीं आएंगे। मेरा ये जिसने भी मेरे ख्याल में इनको इस तरह की पब्लिक सज़ाएं देनी चाहिए ताकि रेपिस्ट, हरेसर्स और इस तरह के मर्डर सरेआम होनी चाहिए ताकि इनको खौफ आए। आप दुबई, सऊदी अरेबिया जाएँ ना, बैग छोड़ के चले जाएँ, कोई नहीं उठाएगा। इधर आपके घर में से चीज़ें उठा लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वेरी वेरी, मतलब आप भी यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इंसाफ होना बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोसाइटी में जहाँ जी माएँ, बहनें, बेटियाँ, पैरालाइज लोग आए, वहीं हमारे ये नौजवान भी आए। ये फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान का। किस नज़र से देखते हैं इस केस को और क्या चाहते हैं, ये इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं आप मेरी भी बेटी है, बहन है, माँ है, आपकी भी है, तो ये क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए ना, जो हमारा दीन, जो हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हमारे लिए कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो उनके सामने जब उनकी बेटी आती थी हज़रत फ़ातिमा, तो वो एहतरामन खड़े हो जाते थे। और हमने हमारी सोसाइटी देख ली, हमने औरत को क्या मकाम, क्या इज़्ज़त दी है। तो सबसे पहले तो हमें औरत को समझना चाहिए कि वो हमारे लिए है क्या, मतलब। और ये बात शुरू होती है घर से, अपने घर से। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो हुआ है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, प्लस अब इसको जल्द अज जल्द इंसाफ के तहत की तरफ पहुँचाना चाहिए, मतलब ख़त्म करना चाहिए जल्द, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स की बातें हम सब नहीं सुनी, आपने भी सुनी होंगी, उनके जो आंसू इमोशंस से, तो वो तो हम तो नहीं बयान कर सकते इस तरह। तो जी यही मतलब, और इस तरह के कि इसको आप एज अ मीडिया, मैं तो कहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें कि लोगों को ज़्यादा अवेयर हो, पता चले लोगों को कि यार हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है, किस तरह सब कुछ है। तो इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम इंशाल्लाह इसको ठीक कर पाएंगे और सारे मिलकर इसको ठीक कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे इंसाफ होना चाहिए इस केस का? देखें, ये ऐसा केस है कि इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले बताना चाहिए, हमें स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए दिस इज़ नॉट द वन केस, ठीक है। ऐसे और भी कई केसेस हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने आप से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आरसेल्व्स आर ashamed to be called male, ashamed to be the head of our families, head of our home, मतलब कि घर वाले अपने, अगर सपोज दैट कि अगर हमारे अपनों को कोई माँ बहन अगर उसके हो तो कैसे हमें फील हो, कसम से सोच के दिल बाहर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह तो हमें इसके ऊपर हमें कम से कम कैसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। यार अगर बंदा अपने बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, तो वो बंदा ऐसा ख़ानदानी बंदा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस वजह से हम अपनी जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, अपने जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास पावर है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि प्लीज़ हेल्प अस कि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी हो। हम इसीलिए आ जाए हैं कि अपनी माँ बहन बेटियों का ख्याल रखते हैं कि भाई किसी के साथ भी ना हो, जो सही बात है। बहुत शुक्रिया जी। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखते रहें जी BFP TV।
और कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ बिल नहीं है। डोमेस्टिक अब्यूज़ बिल आ भी गया तो मर्द ये सोचते हैं कि जो भी कुछ गलत करते हैं और उसके साथ औरत को ब्लेम करते हैं, उसके कपड़ों पे, उसके ज़बान पे, उसकी हरकत पे, खुद अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं। आपने जो आज के इज्तिमा का जो अरेंज किया, तो काइंडली बताएंगे कि ये इसका क्या मकसद था? जी, मकसद तो बहुत सिंपल है, इंसाफ और जल्द से जल्द इंसाफ, स्विफ्ट जस्टिस, दैट इज़ ऑल वी डिमांड। आई थिंक अब बहुत हो गया है, इनफ इज़ इनफ। हम थक गए हैं टू सी अ वुमन बीइंग रिड्यूस्ड टू अ हैशटैग, और द फियर इज़ दैट इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और सोल्यूशंस नहीं आ रहे हैं उन केसेस के, कि हम एज अ सोसाइटी डिग्रेड होते जा रहे हैं और डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं। वी मस्ट नॉट अलाउ दैट। एंड हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी जुडिशरी, हमारे लॉ मेकर्स जो हैं वो पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करेंगे इन द नेम ऑफ नूर, जो कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो कि औरत का मुस्तक़बिल जो है वो उनके लिए आसान करेंगे। वी आर इतनी जेंडर डिस्पैरिटी क्यों है इस मुल्क में, इतनी इंटॉलरेंस, इनजस्टिस क्यों है टुवर्ड्स वुमेन इन दिस सोसाइटी? दीज आर क्वेश्चंस दैट एवरी सिंगल इंडिविजुअल हियर नीड्स टू बी आस्किंग। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमारी जंग और हमारी जद्दोजहद जारी रहना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है एरिया के भी पुरतशद्दद वाक़यात में जो बहुत तेज़ी से जो इजाफा होता जा रहा है, सो मर्दों को, हमारे मर्द हजरात, हमारे बेटों को, लड़कों को, उनके लिए क्या पैगाम है? आप अभी एक माशाल्लाह इतने खूबरू हमारे एक्टर हैं एंड इतनी फॉलोइंग है आपकी, तो आप क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगेन जो मैंने बात की कि हम बहुत डिसेंसिटाइज हो चुके हैं ऐसे इश्यूज़ के साथ, और हम अपने बबल्स में रहना शुरू हो गए हैं, हम आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस में रहना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर हम समझते हैं कि जब तक हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारी फैमिली, जब तक उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो मतलब वी जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। तो वो अब पट्टी उठाने का वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि वी स्टैंड विद द वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी व्हेन वी स्टॉप if we see any form of harassment, if we see any form of abuse, if we see any form of mistreatment towards women. हमारा मसला ये भी है कि हम as a society kind of post colonial हमारा जो tendency है to look away, अब we cannot afford to look away, we cannot afford to let this fester in our society। और ये हमसे शुरू होता है, हमारे दोस्तों से शुरू होता है। हमें सबसे पहले अपना नज़रिया बदलना होगा कि हम औरत के साथ किस किस्म का सलूक करते हैं। हमें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को रोकना होगा। ये तो कुरान भी कहता है, ये तो हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि औरत की इज़्ज़त करें। तो जब हम एक इस्लामी जमहूरिया हैं तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? दिस बिलीफ दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर वुमेन, वी मस्ट बी देयर सहारा, देयर सपोर्ट, एंड वी मस्ट स्टैंड बाय देम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। और ये ज़रा बताएंगे कि ये एक ही है जो अपने यकजहती या मुस्तकबिल में आपका लाया अमल क्या है? जी, ये तो सबसे पहला हमारा इज्तिमा हुआ है और माशाल्लाह जो लोगों की तादाद है उससे यही महसूस होता है कि जो जज्बा है और जुनून है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ लोगों में टू सीक जस्टिस। सो हम इंशाल्लाह और भी प्लान करेंगे। हमारा इवेंचुअल प्लान है टू डू दीज काइंड ऑफ इस तरह के इज्तिमा हम लाहौर में भी करें, कराची में भी करें, दीगर इनफैक्ट हम शायद इंटरनेशनल भी जाएँ इसके साथ। तो डेफिनेटली ये एक मुहिम है जो अभी शुरू हुई है और ये ख़त्म तभी होगी जब ना सिर्फ नूर बल्कि इस मुल्क की हर औरत महफूज है। और एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हर मीडिया पर्सनल चाह रहा है कि नूर की फैमिली से उनका इंटरव्यू हो जाए, कि डायरेक्ट वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके तासुरात या जो भी उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो वो एक मीडिया के लिए एक पैगाम आपकी तरफ से, आप भी मीडिया पर्सन हैं, तो वो एक मीडिया के लिए भी काइंडली आप एक पैगाम दे दें। जी, मेरा सिर्फ पैगाम है कि हम में से कोई रियलाइज़
ریئلائز نہیں کر سکتا کہ نور کے ساتھ کیا ہوا. ہم چاہے جتنا بھی پڑھ لیں, جو بھی ہم پڑھ لیں, وی کین نیور پٹ آور سیلز ان دی شوز آف آور فیملی, آف آور لوڈ ونس. جو ان پہ گزر رہی ہے اس کا پلیز احترام کریں. رسپیکٹ دا فیملی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اپنی ٹون, اپنے لہجے کے ساتھ, اپنے سوالات کے ساتھ رسپیکٹ دیجیے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ جس کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے نا, صرف وہ بندہ اس بندے کے بارے میں, مجھے آپ کا نہیں پتا, مجھے کسی کا نہیں پتا. یہاں پہ جو جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, جس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہی جانتے ہیں کہ وہ بندہ کس قسم کا ہے یا کس طرح نہیں ہے. اب تک جتنی بھی میں نے آئی ڈونٹ پرسنلی, ٹھیک ہے, لیکن جتنا میں نے اس کے بارے میں سنا ہے, میں نے اس کی پینٹنگ, اس کی کیلیگرافی, میں نے ساری ویڈیوز کی, اس کی پکچرز وغیرہ دیکھی ہے. شی واز اے ویری کائنڈ ہارٹیڈ پرسن, شی لکس ویری پریٹی ان سائڈ اینڈ آؤٹ بوتھ. ٹھیک ہے, آپ کس طرح کسی کی کریکٹر ایکسیسینیشن کر سکتے ہیں. اور وہ جو درندہ فیملی ہے, اس کی ماں کا کیا کریکٹر ہے, میں تو پہلے اس کی ماں کے کریکٹر کے حوالے سے بات کی. اس کی ماں کا اپنا کیا کریکٹر ہے پتہ نہیں. تھیراپی ورکس میں بھی وہ کام کرتی رہی ہے, 6 سال کی لوگوں کی دوستی کی, تب تو ان کے تھیراپی ورک والے کھڑے ہیں اس کے. کچھ ایسے سب ٹائپ جو پہاڑی آدھی سرائکی کے لیں آدھے سندھی کے لیں, اور جو سردار ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, جب ایک انسان اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے نا, وہ سامنے آ جاتا ہے. اور یہ صرف بات نہیں ایسی, میں ایک بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی. since she also stayed abroad, I also stayed abroad, and we all belong from good families. تو یہ جو جب آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہو نا, تو بوائز اینڈ گرلز آر آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے, اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئڈ میں نہیں پڑھ رہے, آپ کی صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی دوستی ہو, لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر یہ جو لوگ غلط وکٹم بلیمنگ اور یہ کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع ہوتے ہیں نا, اچھا جی لڑکی کا لڑکی کے ساتھ چکر ہے, یہ وہ پلیز کم آؤٹ آف دیز آل دیز بلشٹ تھنکنگ. اسی لیے تو پاکستان آج تک بھی وہیں کا وہیں ہے جہاں پہ پہلے تھا. اس میں کوئی نواز شریف کی بات نہیں آ رہی, اس میں کوئی پرائم منسٹر عمران خان جی کی اب بات نہیں آ رہی ہے. یہ جیسا پہلے تھا ویسے, کیونکہ ہمارے لوگوں کی جو سوسائٹی کی جو تھنکنگ ہے نا, وہ بدلتی نہیں ہے. جس دن ہماری سوسائٹی کی تھنکنگ بدل گئی نا کہ ایک لڑکا اور لڑکی دوست ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو وہ کریکٹر اسیسینیشن بھی اسی دن بند ہو جائے گی. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں 10 سال چائنا میں رہی ہوں, اب بری بات ہے لیکن دیکھیں وہ کافر لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ مطلب ہے if they don't like you they're not going to speak behind your back. ہمارے پاکستان میں اکٹھی کمیونٹی میں کوئی پارٹیز ہو رہی ہیں, کٹی پارٹیز ہو رہی ہیں, آپس میں عورتیں آدمی لوگ بات کریں, جیسے ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی پیٹھ پورت پیچھے برائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دس از کالڈ ہپوکریسی. اس کی وجہ سے تو پاکستان آج تک وہیں کا وہیں ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, عمران خان آ جائے, عمران خان کا باپ بھی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, یہ ایسے ہی رہے گا. جب تک سوسائٹی کی تھنکنگ یہاں پہ ہماری چینج نہیں ہوتی, یہ ایسا ہی رہے گا. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے, تو جس طرح عمران خان صاحب نواز شریف کے پیچھے پڑے تھے کہ ڈیلی کیس کو اور جلدی سے ہاں, جب اس کے پیچھے پڑا تھا تو اس کے پیچھے ایسے لگتے جیسے اس کی اپنی کوئی ذاتی دشمنی تھی نواز شریف کے ساتھ, جو اتنا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ تو پھر بھی خوش ہے, وہ تو انگلینڈ میں اپنے پوتا دوتا جو بھی اس کی شادیاں کرتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان سے. جس چیز پہ اس کو یہاں پہ رہ کے نوٹس لے کے جو وہ بیک آؤٹ کرتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. اچھا, اس کی نا یہ والی چیز میں نے دیکھی ہے, ہی از ویری گڈ ان گیونگ اسپیچز, ویری گڈ ان گیونگ اسپیچز. اینڈ ہم نے پاکستان کو یہ کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو وہ کرنا ہے. خالی باتوں سے نہیں ہوتے پرائم منسٹر جی, آپ کو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. یہ اسٹوپڈ قسم کی صرف پلانٹنگ وغیرہ نہ کیا کریں. آپ کے خالی پلانٹس یہاں پہ اسلام آباد میں بنا دیں تو اس کو ہرا بھرا خوبصورت نیو یارک بنا دیں. یہ اسلام آباد اور یہ اسلام آباد ہی رہے گا, یہ کینیڈا نیو یارک نہیں بن سکتا. لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ریاست مدینہ جو کہتے ہیں نا, اس کو کر کے بھی دکھائیں کچھ, تاکہ جو 3 سال آپ کو ہو گئے ہیں, جتنے بھی سال ہوئے, جتنے بھی آپ کے سال رہتے ہیں, تو اگلی دفعہ بھی آپ ہی ٹکے رہنی. تو ہمیں کوئی پرائم منسٹر نہیں چاہیے, نہ نواز شریف چاہیے, نہ یہ چاہیے, کہ سب بھی فالو. وہ بہتر سمجھ سکتی ہے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہم جو مرضی کے ہم اس طرح نہیں فیل کر سکتے. جو مین اس کا پرپز ہے پروٹیسٹ کا, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, دونوں فیملیز آئی ووڈنٹ سے فار دی ادر اپوزٹ پارٹی, لیکن دونوں ہائی فائی ہیں اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے. اور دوسری جو مخالف پارٹی ہے, دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ. یہ آپ سب کو پتہ ہے, دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ کسی طرح سے اس
शख्स को, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, दोज मर्डरफुल आइज़ जब आप उसको देखते हैं ना, जिस तरीके से वो गुजरता है, तो ये कि उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि किसी अब आहिस्ता आहिस्ता पहले थेरेपी वर्क्स वाले छुटे, अब इन्होंने जो मुलाजिम लोग हैं उनको छुड़वाने की कोशिशों में लगे हुए, फिर अपनी बेल में लगे हुए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक जो छुटते हुए नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। तो हमारी सिर्फ यही चीज़ है कि ये जितना डिले करी जा रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आती कि डिले कर क्यों रहे हैं। आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, आपके पास सब कुछ है, मुद्दे पे वो बंदा पकड़ा गया है, सब कुछ उसने कबूल भी किया है, सब कुछ उसने किया, हम सब सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? डिले पे डिले। और वो जो इनके अपोजिट पार्टी के जो वो लॉयर हैं बगैरत से, जो भी है वो अजीब उनकी हवन्नक किस्म की बात है। हाँ, ख्वाजा हारिस जी कॉल किया, तो अच्छा जी कॉल किया, पता नहीं आगे से किसने फ़ोन उठाया, और तुम किस तरह कह सकते हो कि प्यो ने फ़ोन नहीं उठाया, कि किसने फ़ोन नहीं उठाया? मतलब स्टूपिड किस्म की लॉजिक्स। आप वकील हो, किस तरह की दलाइल दे रहे हैं, अपने आप को आप लॉयर कहते हैं। बुनियाद पे वो जमानत दिलवाना चाह रहे हैं, वो ऐसे ही करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू दिस, ताकि जब आप शक में होते हो ना, तो फिर ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू आर मैनिपुलेटिंग द माइंड ऑफ द जज, तो डेफिनेटली फिर उसको होगा कि जी वो बेसिकली अब उनकी कोशिश है माँ बाप को छुड़वाने की, कि जी उनको तो कुछ पता ही नहीं था, उनको तो ये इतनी जो 600 कॉलेज क्यों, इतनी तुम्हें अपने बेटे से मोहब्बत है तो तुम उसको कराची क्यों नहीं साथ लेके गई? उसका मकसद ही यही था यहाँ पे रहने का, कि उसने उसका करना था कत्ल, इसलिए वो यहाँ पे रहा है। और इसके माँ बाप को नहीं पता होगा, इसकी माँ को नहीं पता था कि किस किस्म का ये दरिंदा नाक हैवाना किस्म का। 238 कॉल है उसकी मालदारी 2 दिन। तो वही कह रही हूँ, खुद को जब छितर पड़े इंग्लैंड में तो फौरन पुलिस को बुला लिया। हमें भी पता ना, मैं भी इंग्लैंड में रह चुकी हूँ, यू नॉट अलाउड टू हिट एनीवन लाइक दैट, एनी फीमेल, एनी किड, एनीवन लाइक दैट। उस वक्त उन्होंने फौरन पुलिस को बुला लिया। तो अब किसी की बेटी के साथ हुआ है तो आपने इस केस को फॉलो किया? तो मैंने शुरू दिन से इस केस को फॉलो करती आ रही हूँ अब तक। तो आपको लगता है ये 12 के 12 मुल्ज़मान हैं और सबको सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये जो ताहिर ज़हूर ये जो आके कॉन्फ्रेंस कॉल करें, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम इनोसेंट हैं, मुझे तो उसके बाप ने कॉल की ये करने के लिए, ओ प्लीज़ यार, वी आर नॉट किड्स, फॉर गॉड सेक, पागल जाके किसी और को बनाओ। और असमत को कुछ काम देना चाहिए आप, असमत आदमखोर को तो वो निकल के तो आए, बच के निकल के आए, तो इसी मैदान में उसको उसका हम हशर करते हैं, उसको निकल के आने तो दूसरा यहाँ पे उस आदमखोर को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। या अल्लाह या रब्बी रब्बिल आलमीन, हैव मर्सी अपॉन द सोल ऑफ Noor and forgive her and grant her swift justice. Ya Rabbi, we beg of thee, all of us, we are all Noor's family, we are all here today in solidarity with her and with her family, and we seek justice, and we beg of the government to finally provide justice for Noor and her family and women like her. All the women that are being raped, all the women that are suffering are our mothers, our sisters, our daughters, our cousins, our aunts, our future wives. For God's sake, we've had enough. For God's sake, we've had enough. We want a safe country for our children. We want a safe country for our daughters. We want a safe country for our females. This solidarity that we are showing here today is to show that we all have hearts. We are all humans. We are here for humanity. Despite our colors, despite our races, despite whatever we may follow. Ya Rabbi, grant us swift justice and let our government finally, one day, hopefully, as soon as possible, Imran Khan, all those in charge, all those in government, take notice. We need to change society for our women. We need to change society for our children. We need to change society for our future generations. Wal akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali
इंसाफ इंसाफ कहाँ तक ले आया हमें इंसाफ कि आज इस इंसाफ के पीछे हमारे मुल्क की बहनें, बेटियाँ, बच्चे, सारा ही माशरा, सारी सोसाइटी, इस आज सारी वीडियो में आपने देखा पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, विलेजर भी हैं, सिटीज़न भी हैं, फॉरेन के आए हुए लोग भी हैं, और ये प्यारी सी एक बेटी काफ़ी देर से इसी तरह खड़ी है। अगर आप इस वक्त कैमरे में इसका चेहरा गौर से देखें तो ये मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, इस पूरी कौम की बेटी है। ये बेटी चुप करके खड़ी है, इसकी आंखों में मुझे हज़ारों सवाल नज़र आ रहे हैं। क्या कहूँ इससे, मैं क्या पूछूँ कि मैं भी इसी गंदे माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी इंसाफ के लिए तरसता हूँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ करता हूँ। बेटा सॉरी, मेरी हिम्मत नहीं है आप लोगों से सवाल करने की। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? इस तरह सब लोग आए हुए, मुझे भी बहुत गुस्सा है कि उनको जस्टिस क्यों नहीं मिला है। मतलब मैं अभी से यही कहना शुरू किया, गुस्से में यही कह रही हूँ कब से कि ठीक है, मुझे बहुत एहसास है गवर्नमेंट से, बेचारों के पास ना डेड बॉडी है, ना सबूत है, ना कातिल है, कुछ नहीं। मतलब ऐसे सिचुएशन होती है, फिर मुश्किल होता है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है। अभी सब कुछ है तो क्यों हो क्यों रहा है, डिले हो क्यों रहा है? और इस पर और मुझे गुस्सा और इसलिए आ रहा है क्योंकि सबूत सारे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं इसके फिर भी नहीं हो रहा है। तो वो एक अकेली औरत जिसके घर में जिसका खाऊन, उसका बाप भाई उसको मार रहा है, उसके लिए क्या उम्मीद रही है ही नहीं ना, उसके लिए उम्मीद है ही नहीं, कोई उम्मीद। मार पड़ती रहती है, उनको बातें सुनने को मिलती है। प्रॉब्लम ये है, पूरा मसला ये है कि औरत को ब्लेम करते हैं अपने जुर्म, खुद कैट कॉलिंग करते हैं, खुद हैरास करते हैं औरतों को, खुद मारते हैं, कत्ल भी कर लेते हैं। फिर आखिर में ये कहते हैं क्योंकि ज़बान चलाती होगी, इस तरह कपड़े पहन के गई होगी। यह मसला है, ये हमारी पूरी सोसाइटी में यह मसला है। और मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे गुस्सा और इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे रिमाइंड हो रहा है मुझे कि हमारी सोसाइटी का हाल क्या है, कि इसको नहीं मिल रहा, हम मिलके ये खड़े हैं। जब हुआ था मैं रो के हम यहाँ पर खड़े, फिर भी इसका इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो औरतों को क्या होगा जिनके लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है, जो अपने घरों में मार खा रही है, जो वो उनका कोई उनको सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। हम बेचारे नूर के सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, बाकी औरतों के सपोर्ट के लिए कौन खड़ा होता है? कोई खड़ा नहीं होता उनके लिए। मर जाती है, ये रो रो के अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर देती है। कोई अल्फाज नहीं है बस मेरे पास इन बेटियों को जवाब देने के लिए। मुझे अफसोस है कि मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी अपनी बेटियों के साथ रात को बाहर निकलते हुए डरता हूँ। क्या करें हम? एजुकेशन होनी चाहिए लड़कों की, उनको बताना चाहिए कि जो उनका जो वो गलत कर रहे हैं वो उनका कसूर है, लड़की का नहीं, किसी और का नहीं, ना पुलिस का कसूर है, ना लड़की का कसूर है, उनका कसूर है। और वी आर ऑल ह्यूमन, बच्चे, औरतें, जानवर, सब वी ह्यूमन बीइंग्स, वी लिविंग थिंग्स। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांस हो, हिजड़ा हो, खुसरा हो, इंसान है। और किसी को भी हमें हक नहीं बनता है कि किसी की इंसल्ट करे, किसी की डिसरिस्पेक्ट करे या किसी को मारे। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है हमारी सोसाइटी के मर्दों में कि हम इक्वल, हम इंसान हैं। इस्लाम भी हमें इक्वालिटी देता है, ह्यूमैनिटी हमें इक्वालिटी देती है, बस हमारे मुल्क में लोगों के दिमाग की तरह पे। और औरतें भी इसमें शामिल हैं, औरतें भी ये इनकरेज करती हैं, इस तरह अपने बेटों को फेवरेट करती हैं और जो भी कुछ कर ले, रात तक पूरी रात लड़का ना आए तो कहती कुछ नहीं, खैर है लड़का, जैसे कि लड़का गलत काम नहीं कर सकता है। और लड़की 1 घंटा 2 घंटे भी रात को आ जाए, मगरिब के बाद आ जाए तो फिर वो होता है। ये औरतें भी ये माइंड सेट को, ये छोटी बात लग रही होगी कि छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये बड़ी होगी, ये माइंड सेट क्रिएट हो जाता है तो फिर जाफर जैसे लोग बना देते हैं औरतें, और मर्द हम सब मिलके बनाते हैं ऐसे लोग। क्या कहेंगी बेटा इस शख्स को और इस तरह के जितने भी, उनको क्या सजा और कैसे होनी चाहिए? एडमिट तो करे वो ऐसे लोग मरते दम तक कहेंगे कि हमारा कसूर नहीं था, औरत ज़बान चला रही थी, औरत गलत थी। एडमिट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ शर्म आएगी, शर्म से रुकेंगे। उनको शर्म नहीं आती है, उनको शर्म नहीं आती चलती लड़की को हाथ लगा के, शर्म नहीं आती उनको। शर्म आना शुरू हो जाए तो शायद गलत काम भी कम करें, शर्म नहीं आती है। अपनी माँ बहन तो घर के अंदर लाख में, पर्दे में, दूसरे की माँ बहन को देखना, इस्लाम ये भी तो बेटा कहता है ना कि अगर दूसरा कोई बेहया है तो मर्द के लिए भी है कि वो अपनी नज़र को नीचे करे। आप बताने, हाँ बिल्कुल
अपना दीन अपने हाथ में। अभी मुस्लिम मतलब औरतें अगर ठीक इसने हिजाब नहीं किया, क्या मतलब मुसलमान ना हो? वो मुसलमान नहीं है, किस तरह सकती है शायद मुसलमान ना हो? उनका क्या हक बनता है कि उनको हरास करे क्योंकि वो दीन फॉलो नहीं करे जो ये फॉलो कर रहे हैं? गलत है। किसी के ऊपर अपनी मर्जी जताना, किसी को कुछ भी कराना अपनी बिलीफ के ऊपर। अगर आपको लगता है कि लड़की का इस तरह करना गलत है तो ना देखें, आप अपना काम करें ना। मैं आया हूँ, मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे दूसरों से क्या, अपने काम कर ले। ना देखे, ना करे गलत काम, किसी और पे ब्लेम ना करे। गलत काम करते फिर कहते ये तो उस तरह निकली थी इसलिए मैं देख सकता, इसलिए मैंने हरास की, इसलिए गाली दी, इसलिए औरत को गाली देते, स्लट वगैरह बोलते हैं। स्लट वो अपनी मेहनत की कमाई कर रही होती है, जैसे भी हम जज नहीं कर सकते, उसका भी है। इनसे तो बेहतर है ना कोई और औरत को मत को जाके गला तो नहीं काटेगी ना, किसी की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेगी ना, वो स्लट भी इन लोगों से बातें नहीं है जी। इस कौम की बेटी ने जो मैं कहना चाहता था आपको कह दिया। खुदा का वास्ता है, ये इंसाफ और जस्टिस और ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन अपने आप को संवारें। और वो ख़वातीन जिनके बच्चे रात रात घरों से बाहर रहते हैं, जिनके मर्द भाई बाप मियाँ कोई भी है वो देर तक घरों से बाहर रहते हैं, उन पर भी कुछ पूछ होनी चाहिए। वो भी तो पूछे ना कि आप कहाँ पर हैं। हर जगह बेटियाँ ही गलत नहीं होती, कई बेटे भी गलत होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।